Hello everyone, I am Shalini and I welcome you all on my YouTube channel Gurukul. So today we are going to discuss about ISO standards and the types. So now let's discuss about full form of ISO. ISO का full form जब किसी को ISO का full form पूछते हैं तो नॉर्मली उनको confusion हो जाता है कि वो इंडियन होगा या फिर ये थोड़ा सा ट्रिकी है. ISO का फुल फॉर्म जो है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. सो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि आई के बाद ओ का फुल फॉर्म होता है एंड देन एस का होता है. सो दिस इज बिट ट्रिकी. देन व्हाट आर स्टैंडर्ड्स? नाउ इफ यू विल डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड्स इज समथिंग जो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल यू कैन से और सम स्टैंडर्ड्स वो होता है जिसको एक प्रॉपर फॉलो करना होता है हर एक डिपार्टमेंट वाइज. लाइक स्टैंडर्ड can be of some particular department, it can be for some product or for processing unit or something जो भी होता है, but standards are something which needs to be followed while doing work. So basically now we are talking about ISO standards. So basically they are universal specification for products, services and systems to ensure quality, safety and efficiency. Now if we are discussing about ISO का क्या है कि जो भी इसके स्टैंडर्ड्स होते हैं दे आर यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन. लाइक दे आर नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर प्रोडक्ट सर्विस बट दे आर एप्लीकेबल फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज एंड सिस्टम्स. क्यों ये अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट सर्विस सिस्टम के लिए? टू इंश्योर क्वालिटी उसकी अच्छी है कि नहीं, सेफ्टी के लिए एंड एफिशिएंसी के लिए. व्हाट इज एफिशिएंसी? इट शुड बी लाइक जल्दी से होना चाहिए विथ टेकिंग पर्टिकुलर मेजर्स related to quality and safety. They are instrumental in facilitating trade and building trust. So अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, मतलब ट्रेड रिटेल बिजनेस में है या हमको अपने जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो ISO सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. अभी तक ISO में 22,521 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आ चुके हैं हर एक इंडस्ट्री को लेके. इट इज़ नॉट ओनली ISO इज़ नॉट समथिंग विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू सम पर्टिकुलर इंडस्ट्री, वेदर इट इज़ फूड और समथिंग, बट इट इज़ लाइक कवरिंग ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू फूड सर्विस टू एग्रीकल्चर एंड हेल्थ केयर टू. सो however ISO 9001 and ISO 14001 are most generic ISO standards. Means what? 9001 and 14001, these two ISO standard certifications are generally used by most of the industry. They are applicable for multiple businesses, organizations, and ISO these standards are something getting impact on everywhere in every industry. So ISO standard certification is a proof of product or company is responsibly operating in line with industry best practices and management systems. So ISO standard certification क्या होता है? ये एक proof है. For example, if you are telling that you are food technologist, you should have some proof, right? कुछ डिग्री होनी चाहिए आपके पास. तो वैसे ही अगर आप बोल रहे हो कि we follow quality, we follow management, so मतलब फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, तो आपके पास भी कुछ एक ऐसा सर्टिफिकेशन होना चाहिए जिससे हमको पता चल सके कि या यू आर रिस्पॉन्सिबली लाइक हैविंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन योर इंडस्ट्री. सो ये जो होता है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दिस इज नॉट restricted to some particular industry but they are universal standard. Almost every industry follow this standard and it is independent, नॉन गवर्नमेंटल. मतलब कि ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. लाइक ISO हम सोलली ISO सर्टिफिकेशन अपने इंडस्ट्री के लिए ले सकते हैं. ऐसे नहीं है कि इफ़ वी आर टेकिंग ISO सर्टिफिकेशन तो हमको कोई और भी सर्टिफिकेशन लेने की ज़रूरत है. या बहुत सारे हैं, like there are multiple things which needs to be followed in the industry. For example, HACCP, food safety management. But when I am talking for the particular certification, so ISO is something which can be taken independently by any food business operator or by any company. Okay, it is non-governmental international organization. Means this is not something like
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. इट हैव टोटल मेंबरशिप ऑफ 163 national standards and its headquarter is in Geneva, Switzerland. So in last the FSSA exam which is conducted in last March month, इसमें ये क्वेश्चन आया था कि लाइक करेक्ट लाइक चार ऑप्शंस थे. उसमें था कि ISO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है. सो देर वर मल्टीपल ऑप्शंस लाइक इटली एंड ऑल. सो जेनेवा स्विट्जरलैंड वाज समथिंग विच वाज करेक्ट. देन सो हमको ये याद रखना है कि ISO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. ओके. एंड ISO सर्टिफिकेशन अभी हम लोग अगर ले लेते हैं तो इट बिल्ड credibility in the eyes of employees, in the eyes of people we are working with, or the people who are involved with the company. Then ISO 9001. So 9001 and 14001, as we discussed, these two standards are something which is followed by multiple of the companies because it is related to quality and food safety management. Okay. So 9001 जो होता है, it is used to create, implement. किसी भी कंपनी में अगर क्वालिटी से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन करना है या फिर क्वालिटी मेंटेन करना है तो वी नीड टू टेक ISO 9001 स्टेटिंग दैट आवर कंपनी इज क्वालिफाइड फॉर लाइक मेंटेनिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. ओके. अभी इट इज एप्लीकेबल टू द इंडस्ट्री और एनी साइज और कैपिटल. लाइक कोई भी साइज, कोई भी कैपिटल, अगर कोई भी टर्नओवर होगा कंपनी का, दे कैन अप्लाई फॉर इट, दे कैन गो फॉर इट. देन अब इसका जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड था, द अपडेशन वर्जन, ये आया था, पब्लिश हुआ था 2015 में. सो 2015 से लेके अभी तक जो 2015 में जो आया था अपडेशन ऑन दिस स्टैंडर्ड, वो अभी तक लोग वही फॉलो कर रहे हैं. ओके. उसके बाद 2015 के बाद कोई नया स्टैंडर्ड नहीं आया है ISO 9001 का. Second is ISO 14001. So this is something to implement environmental management system to your company. Like अभी जैसे for example, if we are some food processing industry and we are having 14001 ISO certification, which means that जो भी pollution होता है हमारे, जैसे देखो ना, कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, फूड की, उसमें कुछ ऐसा एक्टिविटी हो रहा है जिसकी वजह से धुआं वगैरह उठता है, तो उससे एनवायरमेंट को कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है. इसके लिए हम लोग ये सर्टिफिकेशन लेते हैं स्टेटिंग दैट वी आर इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स विच आर लाइक which have sustainable product or which are also sustainable for environment. ठीक है. It comprises of policies, processes, plans, practices and records. If we are taking some particular ISO certification, we need to assure that we are following every policies, processes, plans which are given by the standards. Then ISO 14001 requirement provide a framework and guideline for creating EMS for any organization. EMS is what? Environmental Management System. So इसका भी जो स्टैंडर्ड था वो 2015 में आया था. तब से लेके अभी तक हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं. देयर इज नो अपडेशन इन दीज सर्टिफिकेशन ऑल्सो. OHSAS 18001. Now OHSAS is something which is included in ISO and it is a type of ISO. Okay. Then 18001, this standard states about needs to be done, implement on occupational health and safety management system. So अभी OHSAS जो है ये हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बराबर है. मतलब कि जो भी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है उसका हेल्थ और उनके सेफ्टी के लिए हम लोग मेजर्स ले रहे हैं. इसमें भी सेम वही है कि जो भी इसके पर्टिकुलर हम जब सर्टिफिकेशन लेंगे तो हमको एक प्रोसेस, एक प्लान, एक रूल्स, रिकॉर्ड्स मिलेगा, वो हम लोग को फॉलो करना है फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी पर्पस. ठीक है. ISO 45001. So this standard states about what needs to be done to implement an occupational health and safety management system. अभी इसमें ये है ISO 45001 में कि जैसे हम लोग OHSAS certification लेते हैं for occupational health, so ISO 45001 is a certification which will teach us how we will implement occupational health and safety management thing. ठीक है, in our company. So इसमें क्या होता है कि हज़ार आइडेंटिफिकेशन करना होता है, रिस्क असेसमेंट करना होता है, उसका रिकॉर्ड रखना होता है. हज़ार आइडेंटिफिकेशन इज व्हाट, मतलब कोई भी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हज़ार्ड एज वी ऑल नो, biological, physical and chemical. Example of biological is insects, blood or something in your food or in your product, and
केमिकल मतलब क्या, कोई भी केमिकल आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो that is intentionally or unintentionally, but if some chemical included in our, like गलती से भी अगर आ गया प्रोडक्ट में, तो that is comes under chemical hazard. एंड बायोलॉजिकल डिस्कस कर लिया. फिजिकल जो होता है, फिजिकल में हमारा मेटल्स, नेल्स या हेयर अगर प्रोडक्ट में आ गया तो दैट इज फिजिकल हजार्ड. ओके, सो आइडेंटिफाई, हम इसमें क्या करेंगे, सर्टिफिकेशन में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे हजार्ड को. ठीक है, कि प्रोडक्ट के अंदर कहीं कोई हजार्ड तो नहीं है, या फिर हम कोई भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, कोई भी कंपनी में काम चल रहा है तो उसमें कोई हजार्ड तो नहीं है. देन रिस्क असेसमेंट, मतलब कि होने वाले रिस्क को असेस करना. ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखना. ठीक है, इसके भी जो स्टैंडर्ड थे वो पब्लिश हुए थे 2018 में, और तब से बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो फॉलो कर रही है. देन नेक्स्ट, अभी हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं. मतलब ये जो चार्ट दिख रहा है साइकिल, ये साइकिल हमको ये रियलाइज कराता है. जैसे एक तरफ कस्टमर है, ठीक है, उनका रिक्वायरमेंट आता है, तो रिक्वायरमेंट कस्टमर का आने से लेके सेटिस्फाइड होने तक, अ कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड. अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट आया और वो सेटिस्फाइड है, इसका मतलब ये है कि हाँ, हमारा जो प्रोसेस है वो एक्यूरेट है, मतलब एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली हो रहा है. ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे इनपुट आ रहा है. इनपुट क्या होता है, अभी जैसे कोई भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट में पूरा प्रोसेसिंग का पार्ट हो रहा है, पैकेजिंग हो रहा है, लेबर्स काम कर रहे हैं, तो वो हमारा इनपुट है. इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये सब हमारा इनपुट है. आउटपुट मतलब क्या, जो बाहर जा रहा है. अभी पूरा प्रोसेस फॉलो करने पे बाहर क्या जाता है, या तो प्रोडक्ट जाता है या तो सर्विस जाता है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल रिसोर्स बहुत टाइप का होता है. यू कैन से एम्प्लॉय कैन ऑल्सो बी कम अंडर रिसोर्सेज, बट पर्टिकुलरली बात करें तो जैसे रॉ मटेरियल हो गया, फाइनेंस, हमको कैपिटल लगता है, ये सब रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाता है. फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी जो मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू इंश्योर दैट कि जो भी काम हो रहा है, जो भी डिसीजन ले रहा है, दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी एंड दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट. अभी देखो, अगर कोई भी प्रोडक्ट सर्विस बाहर गया, ठीक है, तो हमको हो सकता है कि कुछ गलत फीडबैक कभी मिले, तो वहाँ पे हमको एक रियलाइजेशन होता है कि हाँ, हम लोग ये मेजरमेंट ले सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, अभी ये मेजरमेंट, क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट जो होता है, ये किसकी वजह से होता है, QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट. मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार प्रोडक्ट बन गया, मार्केट में आ गया, तो उसके बाद हम लोग क्वालिटी को फॉलो ही नहीं करेंगे. नहीं, दिस शुड बी कंटिन्यूसली डन इन द कंपनी. ओके, कंटिन्यूसली होना चाहिए, दिस शुड बी कंटिन्यूअल प्रोसेस. सो कंटिन्यूसली ये स्टेप के लिए हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहेंगे. फिर हमारा जो आउटपुट आएगा वो ये होगा कि हम प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को दे रहे हैं, और ये बराबर से अगर पूरा साइकिल हो रहा है तो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो जा रहा है. ओके, देन एग्जाम्पल ऑफ ISO. अभी देखो, अगर आप स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो वेस्ट है वो रिड्यूस हो रहा है कंपनी के अंदर. लेजिस्लेटिव कंप्लायंस, लेजिस्लेटिव, अभी देखिए, अगर आप बात करते हो ना 14,001 का, मतलब एनवायरमेंटल का, जो भी हमने पढ़ा था ना 14,001 क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. तो इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 3 चीजें होती है. ठीक है, एक तो वेस्ट कम हो रहा है, दूसरा खरीदने वाले भी रिस्पॉन्सिबल बन रहे. ठीक है, तीसरा लेजिस्लेटिव कंप्लायंस, मतलब सारा ही चीज जो है वो कंप्लायंस के अंडर में हो रहा है. कंप्लायंस क्या होता है कि अभी जैसे हम लोग बोलते हैं कि दिस ये जो प्रोडक्ट है ना, ये कंप्लायंस, मतलब दिस इज फॉलोइंग कंप्लायंस. अभी दिस इज कंप्लायंट. अभी कंप्लायंट या कंप्लायंस क्या होता है कि मतलब वी आर फॉलोइंग, या दैट प्रोडक्ट इज फॉलोइंग एवरी रेगुलेशन, एवरी स्टैंडर्ड गिवन बाय ISO, तो उसको बोलते हैं इट इज अंडर कंप्लायंस. ISO 27001. सो ज़रूरी नहीं है कि इट शुड ISO, मतलब ISO स्टैंडर्ड जो है वो क्वालिटी के लिए है. अभी अगर हम लोग किसी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो डेटा है, कभी कभी ऐसा होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि उनका डेटा जो होता है इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड. ठीक है, तो इसके लिए एक ISO ने एक अलग स्टैंडर्ड बनाया है 27001, जिसमें ये होता है कि हम लोग सिक्योर इन्फॉर्मेशन जो है वो सिक्योर रहेगा. ठीक है, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2013 में आया था.
ISO 27001 specifies a management system that is intended to bring information security under management control and give specific requirement. जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जब भी ऑडिट होता है, ऑडिट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑडिट एक ही टाइप का होता है, ऑडिट बहुत टाइप का होता है. अभी कंपनी में कि कोई ऑडिट कर रहा है ये देखने के लिए कि मतलब हमको अगर ISO 27001 चाहिए तो आपकी कंपनी में एक ऑडिट होगा जिससे हम लोग जो भी मतलब ऑडिटर होगा या फिर जो भी पर्सन ऑफिसर होगा वो चेक करेगा कि आपने सच में इंफॉर्मेशन जो है वो सारा सिक्योर है, और अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा. देन ISO 22000. अभी ISO 22000 क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली जो भी इन्वॉल्व है या हैंडलर है, मतलब फूड, अभी मैं फूड का एग्जांपल फिर से दूंगी, एज आई एम अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट सो आई लाइक टू गिव एग्जांपल्स रिलेटेड टू फूड. सो अगर कोई भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है फूड चेन में, वेदर इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटर, वेदर ही आर लाइक दे आर मैन्युफैक्चरर, वेदर दे आर फूड हैंडलर्स, उनको फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सेफ होना चाहिए फूड. ठीक है, तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ये लोग करेंगे फॉलो. उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उनका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, ये सेफ है. ठीक है, एंड दे आर गुड टू गो फॉर यूज़. ठीक है, फॉर कंज्यूमर यूज़. इसका भी जो स्टैंडर्ड था वो 2018 में पब्लिश हुआ था और तब से काफ़ी सारी इंडस्ट्री जो है वो इसको फॉलो कर रही है. देन ISO 5001. ये क्या है? ये 5001 जो है ये वॉलंटरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है. वॉलंटरी मतलब क्या होता है कि इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ मैंडेटरी. ओके, इसको हम लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू एनर्जी परफॉर्मेंस. मतलब कि कितना एनर्जी परफॉर्म कर रही है कंपनी उसके लिए होता है, एंड कितना एनर्जी मतलब ये स्टैंडर्ड जो होता है ये मेजर करता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए कितना मतलब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में, मेजरमेंट में, रिपोर्टिंग में कितना एनर्जी यूज़ करते हैं, कितना कंजम्पशन होता है टोटल, उसके लिए होता है. तो जैसा मतलब आप अभी सुन भी रहे होंगे अगर मुझे, तो आपको लगता होगा कि हाँ ये इतना भी मैंडेटरी नहीं है. लाइक बहुत मतलब कहाँ पे कोई कंपनी इसको फॉलो करती है. ठीक है, या फिर तो इसीलिए ये वॉलंटरी रखा है. मतलब कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी. इफ़ यू want to take, you can take. Okay, then it also includes design and procurement practices for energy using equipment. Abhi this is not only related to or restricted to measurement, documentation and reporting. This is also can be the design. अभी जैसे कोई भी इक्विपमेंट है, हम जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं प्रेशर कुकर हो गया, हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं ना, ऑटोक्लेव हो गया, वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितना एनर्जी यूज़ होता है उसके लिए. ठीक है, एंड कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं उसकी एनर्जी को. ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसके प्रैक्टिसेस, इसके रूल्स और इसका जो भी पॉलिसी और जो भी इसका मैनुअल मिलता है उससे हम लोग सीख सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कंपनी के अंदर. इसका भी जो स्टैंडर्ड था वो लास्ट 2011 में आया था, तब से इंडस्ट्रीज को फॉलो कर रही है. ISO 20000. अभी ISO 20000 क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू IT सर्विस मैनेजमेंट. every company, every industry have IT department. Okay, IT department is something सारी companies IT dependent, right? उनको नहीं, वो कुछ बहुत बड़ा IT का काम नहीं कर रही है तो चलो वो क्रिएटिव्स ही बनवाती है अपने लिए, प्रमोशन के लिए वो IT को यूज़ करती है. ठीक है, तो उसके लिए अगर हमको अश्योर करना है कि हमारी जो IT मैनेजमेंट, IT का जो डिपार्टमेंट है दैट इज़ बोलते हैं ना एक क्वालिटी सर्विस दे रहा है, या फिर इट इज़ मतलब IT डिपार्टमेंट को फॉलो करने के लिए. और क्योंकि IT जो होता है इट इज़ समथिंग रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द बिजनेस. तो इसके लिए हम लोग IT के लिए भी अश्योर करने के लिए उसकी क्वालिटी हम लोग ISO 20000 ले सकते हैं. ISO 31000. अभी ISO 31000 जो है इट इज़ रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट. मतलब कि आपकी कंपनी में कितने बोलते हैं ना लिमिट तक सेफ्टी फॉलो कर रहे हैं, रिस्क जो भी होता है मैनेज करते हैं कि नहीं. ठीक है, वो सब के लिए रिस्क को देखने के लिए हम लोग ISO 31000 ले सकते हैं. ठीक है, अभी ISO 31 मतलब रिस्क क्या है? अभी अगर हम लोग ISO 31000 ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. ठीक है, थ्रेट्स मतलब कि अगर कोई भी थ्रेट्स मतलब क्या, जैसे अभी हम लोग पास्चराइजेशन कर रहे हैं मिल्क का और उसमें टेम्परेचर जो है वो ऊपर नीचे हो गया जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है, बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, विच विल डायरेक्टली अफेक्ट टू कंज्यूमर हेल्थ. ठीक है, तो उसमें थ्रेट्स चेक करना.
ठीक है। फिर जो भी अगर हमको मिला है थ्रेड, तो उसको मैनेज करना और उसको ट्रीट करना, ठीक है। ये पूरा ISO 31000 में आ जाता है। तो यही फिर इंश्योर करता है कि कोई भी रिस्क नहीं है। अभी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरऑल बात करेंगे ISO का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इट इज़ टू एडवांस इम्प्रूवमेंट एंड टू फैसिलिटेट बिजनेस एंड एक्सचेंज ऑफ गुड वर्ल्ड वाइड। अभी हम लोग, अभी देखो ये इंटरनेशनली बोलते हैं ना recognized certification है, तो we are not working on the domestic basis or state to state या city to city, we are also like many are working worldwide। अभी हम लोग को अगर अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सचेंज करना है वर्ल्ड वाइडली, बिजनेस करना है इंटरनेशनली, सो दिस इज समथिंग लाइक बोलते हैं ना कि वी हैव सम सर्टिफिकेशन विच इज इंटरनेशनली recognized। इट improves the credibility of our business। So that's all for the ISO and its type। So for more such videos, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.